Good morning, dear students. This is your teacher Balram Pal, and you are studying class 11, subject English, lesson 3rd, Discovering Truth. The saga continues, composed by A.R. William. In previous video, we discussed many things about the lessons. Now let's move on next. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In take their riches with them. To its time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial upon sandals, siddhis for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate it from the adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains of a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rest. तो इसका अर्थ ये होता है कि अपने बचाव में कॉटर के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। यदि वह मम्मी को काटकर अलग नहीं करता तो चोर अवश्य ही सुरक्षा कर्मियों को छलावा देते और इसको सोना उतारने के लिए अलग कर चुके होते। तो के समय शाही लोग अविश्वसनीय रूप से अमीर होते थे और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। उसकी महान यात्रा यानी कि मौत के बाद के लिए राजा तुत को चमचमाती चीज़ों से लादा गया था। मूल्यवान गले का पट्टा, डिजाइनर हार और कड़ा, अंगूठियाँ, ताबीज, पारंपरिक अंगोछा, सैंडल, उसकी उंगलियों के लिए म्यान और अब मूर्ति रूपक आंतरिक ताबूत और मुखौटा सभी शुद्ध सोने के बने हुए थे। तुत को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर और उसके जो वर्कर्स थे, आदमी थे, उन्होंने मम्मी के सिर को अलग करना पड़ा और लगभग हर एक मुख्य जोड़ काटना पड़ा। जब एक बार उन्होंने ये सब ख़त्म कर दिया, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो नुकसान हुआ था वह ढका गया। और यही जो लकड़ी का जो बॉक्स था सेज है जहाँ तो अब आराम करता है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. मतलब क्या हुआ इसका कि खजाने पर कम ध्यान देते हुए और चकाचौंध कर देने वाली जीवन और मृत्यु के कपटी रहस्यों पर अधिक ध्यान देते हुए पुरातत्व विज्ञान आने वाले दशकों में काफ़ी बदल चुका है। यह चिकित्सा विज्ञान समेत कहीं अधिक विशेष यंत्र प्रयोग करता है। 1968 में कार्टर की खोज के 40 से भी अधिक वर्षों के बाद एक शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और चौंका देने वाले तथ्य पेश किए। गौन जिसने उसको छाती को ढका हुआ था, उसके नीचे छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब हैं। नेक्स्ट, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड
tomography or CT, by which hundreds of X-rays is cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal a truth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? मतलब क्या हुआ इसका? आज निदान संबंधी चित्र सीटी स्कैन से लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा एक्सरे किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड को जो अपन स्लाइस करते हैं इस प्रकार से उनको डाला जाता है, ताकि एक थ्री डायमेंशनल मतलब होता है त्रिविमीय यानी तीन आयामी वाला हूबहू शरीर बनाया जा सके। एक्सरे से अधिक सीटी स्कैन तत्व के बारे में और क्या उजागर कर सकता था, और क्या यह दो सबसे बड़े प्रश्न जो आज भी बने हुए हैं का उत्तर दे सकता था? वह कैसे मरा और उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी? किंग टुट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty, but the particulars of his passing and its afterward are unclear. तुत राजा तुत की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी, शाही ढंग से भी। वह अपने परिवार का अंतिम शासक और अंतिम सदस्य भी था, और उसको दफनाया जाना एक साम्राज्य की मृत्यु के समान ही शोर था। परंतु उसकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद की जो परिणाम हैं वो आज भी कैसे हैं? अस्पष्ट हैं, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो राजा तुत है उसकी मौत के जो रहस्य हैं उसको बताने के लिए नेक्स्ट जो है राइटर ने A.R. विलियम ने लिखा है, अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship and the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes, a new city of Achaten, known now as Amarna, his capital from the old city of Thebes, a new city, Achaten, known as Amarna. है ना? He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site ancient Thebes. The family that he had ruled for centuries was coming to an end, and Akhenaten went to a little vacay. मतलब क्या हुआ इसका कि जो अमेनहोटेप जो थर्ड या सबूतों को पढ़ने पर आधारित है कि वह तुत का पिता था या दादा था, उस समय ये क्लियर नहीं था। एक शक्तिशाली राजा था जिसने 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग की ऊंचाई पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उसके लड़के अमेनहोटेप IV ने उसके बाद शासन संभाला और प्राचीन मिस्र के इतिहास में अजीब युगों में से एक की शुरुआत की। नए फराओं ने सूर्य देवता एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, अपने नाम को बदलकर अखनेतन या एटन का सेवक रख लिया और पुरानी धार्मिक राजधानी थीबस को बदलकर एक नए शहर अखेतातेन को राजधानी बना लिया।
जिसे अब अमरन के नाम से भी जाना जाता है। उसने आगे एक मुख्य देवता अमन पर हमला कर उसकी मूर्तियों को तोड़ते हुए, मंदिरों को भी बंद करते हुए यह आदेश दिया, देश को हैरान कर दिया। शिकागो विश्वविद्यालय के लग्जर में रिसर्च सेंटर, जो प्राचीन द्वीप का स्थान है, उसके निदेशक रे जॉनसन ने कहा, एक भयंकर समय हुआ होगा। वह परिवार जिसने सदियों तक शासन किया और अंत की ओर वो आ रहा था, और तब तक अखेनातिन थोड़ा पागल सा भी हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर को हम जो आगे के हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने नोट्स बनाते रहें। कोई भी दिक्कत होने पर आप विद्यालय आकर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, बाय।